حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور آپ کو ایک عظیم بادشاہت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن سے ہی حکمت اور علم کی خاص دولت نصیب تھی۔ آپ کی شخصیت نہایت جلال و جمال کا پیکر تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم اور قدرت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش بنی اسرائیل کے دور میں ہوئی اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنے اقتدار اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کی تربیت نہایت اعلیٰ طریقے سے کی گئی اور آپ کو ابتدائی عمر سے ہی دین اور دنیاوی معاملات کی گہری تعلیم دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اکثر اپنے بیٹے سلیمان کو اپنے قریب رکھتے اور ان کے سامنے فیصلے کرتے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عدل و انصاف اور حکمرانی کے اصولوں کی سمجھ بوجھ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی ان کی عقل و دانش میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عدل و انصاف کے معیار کو برقرار رکھتے اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اولین حیثیت دیتے تھے۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی حکومت سونپی۔ آپ نہ صرف نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کا دور نہایت شاندار تھا اور آپ کی بادشاہت دنیا کی عظیم ترین بادشاہتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقتیں اور قدرت عطا کی تھیں جو کسی اور انسان کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی اختیار دیا گیا تھا اور وہ اپنی خواہش کے مطابق ہواؤں کو قابو کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جنات بھی آپ کے تابع تھے اور آپ ان سے مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج نہایت عظیم الشان تھی۔ اس فوج میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام مخلوقات کو اپنے حکومتی نظام کا حصہ بنایا تھا اور ان سب کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی طاقت بھی عطا کی تھی اور آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے۔ اس حیرت انگیز نعمت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف ایک عظیم بادشاہ تھے بلکہ ایک شفیق اور سمجھدار حاکم بھی تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چونٹو، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں مخلوقات کی زبان سمجھنے کی طاقت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں عدل و انصاف کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو آج بھی دنیا کے لیے مشرہ ہیں۔ آپ ہر چھوٹے بڑے معاملے کو نہایت توجہ سے دیکھتے اور اس میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے۔ آپ کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور ہر کوئی آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آ سکتا تھا۔ آپ کا عدل اتنا مشہور تھا کہ دور دراز کے لوگ بھی اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آپ کے دربار میں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ جنات آپ کے حکم کے تابع تھے اور آپ کی حکومت کے مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے محل، عمارتیں اور دیگر تعمیری کام کرواتے تھے۔ جنات کی قوت اور طاقت کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرپور استعمال کیا لیکن کبھی بھی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات سمندر کی گہرائیوں میں جاتے اور وہاں سے قیمتی موتی اور دیگر اشیاء نکال کر لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات وہ کام بھی انجام دیتے تھے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ بڑے بڑے پتھر اور وزنی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اپنے جنات کی مدد سے کئی حیرت انگیز عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کی جو آپ کی عظمت اور حکمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کے احکام کے مطابق جنات کو کام کرنے کا حکم دیا اور ان سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور مشہور واقعہ سبا کی ملکہ بلقیس کے ساتھ منسوب ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन हुदहुद नामी परिंदे ने बताया कि इसने सबा की सरजमीन में एक अजीम सल्तनत देखी है जहाँ एक औरत हुकूमत करती है और उसकी कौम सूरज की इबादत करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को संजीदगी से लिया और हुदहुद को हुक्म दिया कि वो मलिका बल्कीस को उनकी तरफ से एक खत ले जाकर दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस खत में अल्लाह की तरफ से बल्कीस को ईमान की दावत दी गई थी और इसे हुक्म दिया गया था कि वो अपने खुदा के बजाय अल्लाह वाहिद की इबादत करे। मलिका बल्कीस ने यह खत पढ़ा और अपने वज़ीरों से मशवरा किया। बल्कीस एक अक्लमंद हुक्मरान थी और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को फ़ौरन रद्द करने के बजाय इनसे मुलाकात करने का फ़ैसला किया। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और अपनी आँखों से उनकी अज़मत और हिकमत को देखकर अल्लाह पर ईमान ले आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात को उनकी बादशाहत में ख़ास खिदमात सरअंजाम देने के लिए मुकर्रर किया गया था। ये जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कई मुख्तलिफ काम करते थे, जिनमें तामीराती मंसूबे, खुदाई, समंदर से कीमती अशिया निकालना और दीगर सख्त और मशक्क़त तलब काम शामिल थे। जिन्नात में ज़बरदस्त ताकत थी और वो काम करते थे जो आम इंसानों के बस में नहीं थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात को तमीरी मंसूबों में लगाया और उनसे ऐसी अजीम इमारतें बनवाईं जो आज भी लोगों के लिए हैरान कुन है। जिन्नात न सिर्फ महल और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करते बल्कि ज़मीन खजाने और नायाब अशिया की खोज में भी उनका इस्तेमाल होता था। एक अहम काम जो जिन्नात अंजाम देते थे वो समंदरी गहराइयों में जाकर कीमती मोतियों, जवाहरात और दीगर अशिया को निकाल कर लाना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ये काम जिन्नात आसानी से सर अंजाम देते, जो आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर मुकम्मल इख्तियार दिया था और वो उनकी ताकत और कुव्वत को अपने अदल और इंसाफ के साथ बरोए कार लाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कभी जुल्म और ज़ियादती के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्हें सही कामों में लगाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये तर्ज हुक्मरानी आज के हुक्मरानों के लिए भी एक सबक है कि अल्लाह की अता करदा ताकत को हमेशा खैर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और ख़ास मौजिज़ा अता किया था और वो था हवाओं पर इख्तियार। हवाएं आपके हुक्म की ताबे थी और आप उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। हवाओं का ये मौजिज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सफ़र और नक़्ल व हरकत में बहुत मददगार साबित होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हवाओं के ज़रिए बहुत दूर दराज इलाकों का सफ़र करते थे और उनके लिए हवाएं गोया एक सवारी का काम करती थीं। आप अपने अफ़वाज के साथ हवाओं पर सफ़र करते और बड़ी बड़ी सल्तनतों में बआसानी पहुँच जाते। हवाओं के इस मुजिज़े की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सफ़री औकात में बहुत कमी आ गई थी और अब बड़ी सूरत के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते थे। हवाओं पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इख्तियार अल्लाह ताला की अज़मत और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का एक वाज़ेह निशान था। अल्लाह ताला ने ये ताकत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसलिए दी थी ताकि वो अपनी सल्तनत को बेहतर तौर पर चलाएं और अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुँच सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और अहम वाक़या मलिका बल्कीस के साथ मंसूब है जो सबा की मलिका थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद परिंदे ने इत्तला दी थी कि सबा की कौम सूरज की पूजा करती है और अल्लाह ताला को नहीं मानती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात पर गहरी नज़र डाली और फैसला किया कि मलिका बल्कीस को अल्लाह की तरफ से दावत दी जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस को एक ख़त लिखा जिसमें इसे अल्लाह की इबादत करने की दावत दी गई थी और शिर्क से बाज रहने की ताकीद की गई थी। मलिका बल्कीस ने जब यह ख़त पढ़ा तो इसे मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह और नबी है और वो किसी मामूली शख्स से मुआमला नहीं कर रही। मलिका बल्कीस ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया और बिलाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का फ़ैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस मुलाकात से पहले मलिका बल्कीस का तख्त उनके दरबार में लाने की ताकत दी। अपने अपने जिन्नात से कहा कि वो मलिका बल्कीस का तख्त फ़ौरन उनके दरबार में हाजिर करें। जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामीर की और मलिका बल्कीस का तख्त उनके दरबार में ले आए।
जब मलिका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उन्होंने अपने तख्त को वहां मौजूद पाया और ये देखकर हैरान हो गईं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ताकत और अज़मत को जाहिर किया और मलिका बल्कीस को अल्लाह की तरफ से दावत दी। मलिका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की अज़मत को तस्लीम किया और अल्लाह के दीन पर ईमान ले आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बहुत तवील अरसे तक बनी इसराइल पर हुक्मरानी की। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत में गुजरा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन आखिरकार मौत का वक्त हर इंसान पर आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या भी बहुत अजीब है और इसमें अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में एक असा के सहारे खड़े थे और जिन्नात अब के हुक्म के मुताबिक काम कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली, लेकिन अब का जिस्म असा के सहारे खड़ा रहा। जिन्नात अब की मौजूदगी में मुसलसल काम करते रहे और उन्हें यह मालूम नहीं था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। जिन्नात इसी तरह मुसलसल काम करते रहे जब तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असा घन लगने की वजह से टूट ना गया। जब असा टूटा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। इस वाक़ये से ये साबित हुआ